My lovely students, welcome to Mathological. Welcome to the 12th session of CAD DLR series. इस series में we'll be discussing around 100 DLR sets, beautiful sets. Start करते हैं आज का session and in today's session we'll be discussing an interesting DI puzzle और जिसमें कि there will be a different kind of mapping. Start करते हैं and if you have not already subscribed तो subscribe तो कर ही लेना, साथ में bell icon भी press कर देना. You can also join Telegram or WhatsApp channel as well. And if you have any questions or queries, you can always message me on Telegram at ADIQIAKT. So this is the set for today, and then this is followed by 5 questions. So pause the video, understand the set, accordingly solve it, and then always the solution. Okay. So let's read out the set first. A consulting firm evaluates 6 employees: Anu, Binu, Minu, Ranu, Sanu, and Tanu. Each employee is assessed on 6 performance metrics: technical, communication, teamwork, problem solving, leadership, and reliability. For every metric, every employee receives a distinct integer score from 1 to 6. अब ये स्कोर्स हमें कैसे दिए हैं? स्कोर्स हमें हीट मैप में मेंशन है, यानी कि हर एक स्कोर के लिए कलर कोडिंग किया हुआ है और कलर कोडिंग का हमें डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि 6 इज द हाईएस्ट स्कोर, 1 इज द लोएस्ट स्कोर, एंड एचआर डिपार्टमेंट रिलीजेस द हीट मैप वेयर द ग्रीन कलर denotes either the 5 or 6 score in that particular metric. Orange color denotes either 3 or 4 in that particular metric, and red color denotes 1 or 2 in that particular metric. यानी कि हर एक metric में हमें 1 से लेकर 6 तक के scores given है और accordingly color coding किया हुआ है. Each score from 1 to 6 appears exactly once in every metric. Very important कि each score from 1 to 6 appears exactly once in every metric. यानी कि अगर हम technical metric की बात करें तो वहाँ पे there will be exactly one employee scoring 1 point, exactly one employee scoring 2 points, exactly one scoring 3, and so on and so forth. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली आप देखोगे किसी भी मैट्रिक में देखोगे तो किसी मैट्रिक क्या है, देयर आर 2 ग्रीन कलर्स बिकॉज देयर विल बी 2 एम्प्लॉइज scoring, one will be scoring 5 and one will be scoring 6. There will be 2 employees with a orange color coding because one will be scoring 3 and one will be scoring 4, and similarly 2 employees with red color coding because एक का स्कोर होगा 1 और एक का स्कोर होगा 2. अकॉर्डिंगली हर एक मैट्रिक में रहेगा और फिर अकॉर्डिंगली हमारा हर एक एम्प्लॉय का टोटल स्कोर होगा. एडिशनल कंडीशन क्या है ना कि अनु स्कोर टोटल 23 पॉइंट्स, यानी कि हमें ये पता है कि अनु हैज टोटल स्कोर्ड 23 पॉइंट्स इन टोटल and she scored the highest among 6 employees in technical. हाईएस्ट among 6 employees in technical. अब हर एक एम्प्लॉय को क्या मिला है कि हर एक मैट्रिक में 1 से लेकर 6 तक के पॉइंट्स मिले हैं. ठीक है, तो एक मैट्रिक में मैक्सिमम 0.6 होगा और किसी एक पर्सन को मिला होगा. अब वही हमें गिवन है कि अनु हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट among 6 employees in technical, यानी कि अनु हैज स्कोर्ड 6 पॉइंट्स इन टेक्निकल. ओके, अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल वाला मैट्रिक को ही ऑब्जर्व करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी. अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो टेक्निकल मैट्रिक में देयर आर 2 ग्रीन कलर्स. अब इनमें से 1 विल बी 5 एंड 1 विल बी 6, यानी कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. ईदर अनु हैज स्कोर्ड 5 एंड इन दैट केस रानू मस्ट हैव स्कोर्ड 6, और वाइस वर्सा. इफ अनु हैज स्कोर्ड 6 तो रानू मस्ट हैव स्कोर्ड 5. सिमिलरली फॉर orange color and technical metric, so Meenu and Tanu have got a orange color coding, so either Meenu has scored 3, in that case Tanu must have scored 4, or vice versa, Meenu might have scored 4 and Tanu would have scored 3. Similarly for Binu and Sanu, if Binu has scored 1, Sanu must have scored 2. If Binu has scored 2, then Sanu must have scored 1. क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये तो हमारा बेसिक फंडामेंटल हो गया. अब गिवन है हमें इस इंफॉर्मेशन में दैट Anu has scored highest in technical, यानी कि Anu has scored total 6 points in technical. And if Anu has scored 6 points, then that clearly implies that Ranu must have scored 5 points in technical. Next statement, no employee received a score of 6 in 2 metrics, यानी कि अगर एक मैट्रिक में 6 पॉइंट्स मिल गए किसी एम्प्लॉय को तो जो सेकंड मैट्रिक जहां पे ग्रीन होगा वहां पे 6 मार्क्स नहीं मिल सकते, 6 पॉइंट्स नहीं मिल सकते, बिकॉज नो एम्प्लॉय हैज स्कोर्ड a score of 6 in 2 metrics. So if Anu has scored 6 points in technical, then she cannot score 6 points in problem solving, which implies that she must have scored 5 in problem solving because वहां पे भी green coding है. And if Anu has scored 5 points in problem solving, then that implies that Tanu, the last person, the second person with green coding on problem solving, must have scored 6. Now अगर तनु के लिए ऑब्जर्व करें तो तनु हैज ऑल्सो गॉट ग्रीन कलर कोडिंग फॉर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में 6 मिला है तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन में क्या मिला होगा, 5 मिला होगा, बिकॉज 6 दो में नहीं मिला हो सकता. ठीक है, 2 में 5 हो सकता है एज पर द कंडीशन. दिस माइट बी पॉसिबल कि 2 ग्रीन हो और दोनों में 5 5 मिला हो, दैट माइट बी पॉसिबल. 2 में 6 होना पॉसिबल नहीं है, तो एक में 6 आ गया तो सेकंड में 5 हो सकता है. ओके, नाउ कम्युनिकेशन में भी हमें क्लियरली पता है कि 1 से लेकर 6 तक के पॉइंट्स मिले हैं, तो 2 ग्रीन कलर कोडिंग है कम्युनिकेशन में, तो सेकंड वाला डेफिनेटली 6 होगा बिकॉज 2 को 5 नहीं मिला हो सकता कम्युनिकेशन में एक ही मैट्रिक में.
ठीक है, एक ही मैट्रिक में 1 से 6 एक ही बार स्कोर आएगा। हाँ, एक ही एम्प्लॉयी के लिए ऐसा हो सकता है कि 2 5 मिल जाएँ, ठीक है? सो दैट माइट बी पॉसिबल। तो 5 आ गया है फॉर इन कम्युनिकेशन फॉर तनु, तो डेफिनिटली बीनू मस्ट हैव स्कोर्ड 6। अब बीनू के लिए ऑब्जर्व करें, तो इन द रो, तो बीनू हैज़ आल्सो स्कोर्ड अ ग्रीन कलर कोडिंग इन लीडरशिप, so that must be equal to 5 because 6 मिल गया कम्युनिकेशन। नाउ लीडरशिप 5 पॉइंट्स मिले अगर बीनू को, तो सेकंड ग्रीन कलर कोडिंग मस्ट बी इक्वल टू 6। Now again horizontally for Sanu, if she has gotten 6 in leadership, then teamwork score must be equal to 5. And if Sanu's teamwork score is equal to 5, then teamwork score of Meenu must be equal to 6. And for Meenu, if teamwork score is equal to 6, then definitely reliability score will be equal to 5 because दो 6 नहीं हो सकते। और फिर लास्ट डिग्री हमारा फिक्स हो गया कि दैट मस्ट बी इक्वल टू 6 फॉर रानू इन रिलायबिलिटी। तो रीन वाले सारे के सारे हमने फिक्सअप कर लिया। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, scores of Anu, Tanu, Sanu, Meenu and Ranu form an arithmetic progression in that particular order। यानी कि या तो इंक्रीजिंग एपी होगा हमारा या फिर डिक्रीजिंग एपी होगा। तो क्या क्या केसेस पॉसिबल है? अनु का स्कोर तो मैं गिवन है, दैट इज 23, ठीक है? सो अनु का स्कोर 23 है। इफ दैट इज अ डिक्रीजिंग एपी और कॉमन डिफरेंस 1 का है हमारा, तो तनु का स्कोर क्या होगा? क्योंकि ऑर्डर भी गिवन है, यही ऑर्डर रहेगा, अनु देन तनु देन सानु देन मीनू देन रानू। तो इफ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1, तो अनु का स्कोर 23 है, तनु का स्कोर विल बी 22, Sanu's score will be 21, Meenu's score will be 20, and Ranu's score will be 19. This is one possibility. या कॉमन डिफरेंस 2 का होगा, तो इफ Anu's score is 23, so that of Tanu will be 23 minus 2 21, then 19, then 17, and then last will be 50। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ेगी, किस क्या क्या स्कोर हमारे पॉसिबल होंगे, क्या स्कोर पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है? सो इफ यू ऑब्जर्व फॉर एवरी एम्प्लॉई, देयर आर एग्जैक्टली फॉर एवरी एम्प्लॉई की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक मैट्रिक में तो हमें बताइए कि 2 scores are 5 and 6, 2 are 3 and 4, and 2 are 1 and 2। So definitely there will be for every metric there are 2 red color codings, 2 orange color codings and 2 ग्रीन कलर कोडिंग्स। तो मैट्रिक के लिए तो चीजें क्लियर है, बट एम्प्लॉय में भी वही सेम चीज ऑब्जर्व हो रहा है कि फॉर एवरी एम्प्लॉय वी हैव एग्जैक्टली 2 ग्रीन कलर्स। कोर्स डिफरेंट होंगे फॉर ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन में पता है कि 2 6 नहीं हो सकते, तो एक 6 होगा एक 5 होगा, बट देयर आर एग्जैक्टली 2 ग्रीन कलर्स, देयर आर एग्जैक्टली 2 ऑरेंजेस एंड 2 रेड्स। हालांकि ऑरेंज और रेड में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मतलब कि 2 3 हो या 2 4 हो, तो वो सब चीजें पॉसिबल है, बट फॉर एवरी एम्प्लॉय देयर आर एग्जैक्टली 2 ग्रीन कलर्स, 2 ऑरेंज कलर्स एंड 2 रेड कलर्स। तो यहाँ से हम मैक्सिमम मिनिमम का एक लिमिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज इफ देयर आर एग्जैक्टली 2 ग्रीन कलर्स, तो मैक्सिमम स्कोर पॉसिबल क्या हो सकता है फॉर एन एम्प्लॉय फ्रॉम 2 ग्रीन कलर कोड्स, 6 + 6। बट यहाँ पे तो पता है हमें 6 + 6 पॉसिबल ही नहीं है, तो 6 + 5 मैक्सिमम हो सकता था, ठीक है? तो 6 + 5 इज मैक्सिमम फ्रॉम ग्रीन कलर्स, फ्रॉम 2 ग्रीन्स, देन वी हैव 2 ऑरेंजेस, तो मैक्सिमम स्कोर ऑरेंज से क्या हो सकता है? मैक्सिमम स्कोर फ्रॉम ऑरेंज कैन बी इक्वल टू, भाई दोनों में 4 मिल जाए तो 4 + 4 हो सकता है, एंड फ्रॉम 2 रेड्स मैक्सिमम स्कोर कैन बी 2 + 2। तो मैक्सिमम स्कोर फॉर एनी एम्प्लॉय कैन बी 6 + 5 11 + 8 + 4 11 + 12 23 कैन बी मैक्सिमम स्कोर। तो 23 कैन बी मैक्सिमम, यानी कि अनु मस्ट हैव स्कोर्ड मैक्सिमम पॉइंट्स, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है? तो यानी कि क्लियरली यहाँ पे एक डिक्रीजिंग एपी फॉर्म होगा, इंक्रीजिंग एपी फॉर्म ही नहीं हो सकता, इंक्रीजिंग एपी वाला केस ही पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 23 इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर विद द गिवन कंडीशंस, ठीक है? तो हमें फिर इंक्रीजिंग एपी वाला केस लेना ही नहीं है कि 23 24 25, दैट इज नॉट पॉसिबल। और मिनिमम स्कोर कितना हो सकता है? यहाँ पे तो देखो 6 + 5 फिक्स है सबके लिए, बट इन ऑरेंज 3 and 3, minimum can be 3 and 3 in both, and 1 and 1 in red। So minimum score can be 11 plus 8 19। So 23 can be maximum and 19 can be minimum, these are the possibilities। और अगर मिनिमम स्कोर 19 हो सकता है, तो यहाँ यानी कि हमारा सेकंड वाला केस भी पॉसिबल नहीं है, व्हेन द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है? सो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट अनु मस्ट हैव स्कोर 23, 22 फॉर तनु, 21 फॉर सानु, 20 फॉर मीनू एंड 19 फॉर रानू। नाउ वी डू नॉट नो द स्कोर ऑफ बीनू, बट दिस इज व्हाट वी नो। अब अकॉर्डिंगली हमें आंसर करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। क्वेश्चंस कहते हैं, तो व्हाट इज द लोवेस्ट टोटल स्कोर ऑफ एन एम्प्लॉई? सो लोवेस्ट टोटल स्कोर ऑफ एन एम्प्लॉई, देखो पॉसिबिलिटी तो हमें लग रहा है 19 का, और 19 हमारा आ भी रहा है, 19 से कम पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली आंसर हम कह सकते हैं कि 19 विल बी द आंसर, बिकॉज 19 स्कोर डेफिनेटली हमें मिल रहा है कि 19 स्कोर ऑलरेडी है। अदरवाइज देखते हैं कि लास्ट एम्प्लॉय बीनू का स्कोर क्या होगा, बट बीनू कैन नॉट स्कोर लेस देन 19 बिकॉज 19 इज द मिनिमम पॉसिबल स्कोर। तो डेफिनेटली यहाँ पे 19 विल बी द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्कोर्स ऑफ अनु एंड बीनू? तो बीनू का स्कोर अभी पता नहीं है, तो अभी इसको पता नहीं लगा सकते, और फिर उसके बाद के क्वेश्चंस भी तभी सॉल्व हो पाएंगे जबकि हमें सारा का सारा डेटा क्लियर होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है?
ठीक है, तो अभी एक बेसिक फंडामेंटल हमें क्लियर हो गया। अब आगे की चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद दिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर? अब गिवन है हमें 23 टोटल स्कोर आ रहा है अनु का, और हमें पता है मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर 23 ही हो सकता है। कब हो सकता है? 6 और 5 के बाद, जबकि उसको सारे के सारे जो मैट्रिक हैं वहाँ पे जो हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर होगा विद द कलर कोडिंग वो मिले। तो यानी कि क्लियरली अनु को बाकी जो हमारे बच गए हैं कम्युनिकेशन में ऑरेंज है, तो ऑरेंज में डेफिनेटली 4 पॉइंट्स मिले होंगे, तभी टोटल 23 बन पाएगा। लीडरशिप में 4 पॉइंट्स मिले होंगे, 2 पॉइंट्स मिले होंगे टीम वर्क में, और 2 पॉइंट्स मिले होंगे रिलायबिलिटी में। अब जैसे ही ऑरेंज में कम्युनिकेशन में मिल गए हैं 4 पॉइंट्स टू अनु, तो द अदर पर्सन with the orange color coding in communication must have scored 3 points. Similarly, she has got 2 points with the red color coding in teamwork. So the other person with the red color coding in teamwork must have scored 1 point. Leadership mein she has got 4 points. The other person must have got 3 points. And reliability mein she has got 2 points. The other person with the red color coding must have got 1 point. Okay. So we filled the values for Anu. तो अनु का काम तो हो गया. नाउ अदर पर्सन विद द हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट स्कोर, बिकॉज जहाँ पे स्कोर हायर होगा वहाँ पे हमें चीजें देखना आसान होगा हमेशा, बिकॉज 23 में पता है कि सारे के सारे स्कोर हाईएस्ट हो रहे थे। अब 22 वाले केस में क्या होगा? कोई एक स्कोर होगा जहाँ पे कि 1 पॉइंट लेसर होगा, बाकी सब में तो हाईएस्ट ही पॉसिबल होगा। सो इन केस ऑफ तनु, वी नो कि तनु का जो स्कोर है टीम वर्क में दैट इज 1, तो बाकी सब में हाईएस्ट स्कोर ही होगा उसका विद दैट पर्टिकुलर कलर कोडिंग, बिकॉज 1 मिल गया ऑलरेडी उसको टीम वर्क में रेड कलर कोड के साथ में। ठीक है, सो बाकी सब में मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर होगा, क्योंकि टोटल हमें करना है 22, 6 + 5 + 1 इज ऑलरेडी 12, 12 और स्कोर करना है, यानी कि शी मस्ट हैव स्कोर 4, नो 6 + 5 + 1 दैट इज 12, तो 10 और स्कोर करना है, तो 4 इन टेक्निकल, 4 इन रिलायबिलिटी एंड 2 इन लीडरशिप। नाउ अगेन इन टेक्निकल, इफ शी हैज तनु हैज स्कोर्ड 4 विद ऑरेंज कलर कोडिंग, तो मीनू मस्ट हैव स्कोर्ड 3। इन टीम वर्क वाला चीज तो हो गया। लीडरशिप में शी हैज स्कोर्ड 2, तो मीनू मस्ट हैव स्कोर्ड 1। In reliability, she has scored 4. So the person Binu must have scored 3 points. Now let us move on to the other person that is scoring 21 points. Sanu. सानू की बात करते हैं, 21 टोटल आ रहा है। अब यहाँ पे भी हमें पता है 4 इन्फॉर्मेशन आर नोन फॉर हर स्कोर इन कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप और रिलायबिलिटी। तो 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 तो ऑलरेडी स्कोर आ रहा है। नाउ 1 इज ऑरेंज कलर कोडिंग, 1 इज ग्रीन कलर को रेड कलर कोडिंग, मैक्सिमम 6 हो सकता है और 6 ही हमें ऐड करना है, यानी क्लियरली शी मस्ट हैव गॉट 4 पॉइंट्स इन ऑरेंज कलर कोडिंग एंड 2 पॉइंट्स इन रेड कलर कोडिंग। इफ शी हैज गॉट 2 पॉइंट्स देन टेक्निकल में द बीनू मस्ट हैव गॉट 1 पॉइंट। इफ शी हैज गॉट 4 पॉइंट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग विद ऑरेंज, तो अदर पर्सन विद ऑरेंज मीनू मस्ट हैव गॉट 3 पॉइंट्स। ओके, नाउ 20 की बात करते हैं। मीनू का टोटल स्कोर 20 आ रहा है। 6 + 3 + 3 12 + 6 18, यानी कि शी मस्ट हैव गॉट 2 पॉइंट्स इन communication. So the only remaining person in communication must have got 1 points. Okay, ठीक है। अब 19 स्कोर हमें पता है फॉर रानू, और रानू के लिए भी 4 मैट्रिक फिलअप हो चुके हैं। 6 + 3 9, 9 + 6 15, 15 के बाद में बच गया 4। ओके, 9 + 6 15 के बाद में बच गया हमारा 4। अब 4 कैसे पॉसिबल हो सकता है? 4 तो मिनिमम पॉसिबल स्कोर होगा, यानी कि ऑरेंज में मिला होगा 3 पॉइंट्स एंड 1 पॉइंट इन रेड कलर कोडिंग। तो टीम वर्क में शी हैज गॉट 3 पॉइंट्स, तो द other person remaining Binu must have got 4 points and 1 point in प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो द अदर पर्सन बीनू मस्ट हैव गॉट 2 पॉइंट्स। तो बीनू का स्कोर भी आप पता लगा सकते हैं। 6 + 4 10 + 1 11 + 10 21, तो 21 इज द स्कोर ऑफ बीनू। नाउ लेट अस सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्कोर ऑफ अनु एंड बीनू? तो अनु का टोटल स्कोर इज इक्वल टू 23 एंड दैट ऑफ बीनू इज इक्वल टू 21, द डिफरेंस इज इक्वल टू 2 points is the difference between anu and बीनू। ओके, थर्ड क्वेश्चन, if scores of बीनू and सानू in technical and leadership are interchanged, then what will be difference between total scores of बीनू and सानू? So for Binu, the scores are equal to 21 at present, and that for Sanu are equal to 21. So both have equal scores in total. But if we exchange their scores in technical and leadership, interchange their scores in technical and leadership, तो what will be the difference between their scores? तो technical में and leadership, तो technical में बीनू और सानू का स्कोर क्या आ रहा है? बीनू का स्कोर इज 1 एंड सानू स्कोर इज इक्वल टू 2, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 पॉइंट। बट अगर हम इंटरचेंज कर देंगे कि बीनू को मिल जाए 2 पॉइंट्स और सानू को मिले 1 पॉइंट, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज बीनू का स्कोर 1 से इंक्रीज कर जाएगा और सानू का स्कोर 1 से डिक्रीज कर जाएगा। तो बिकॉज ऑफ स्वैपिंग इन टेक्निकल, बीनू स्कोर विल बी +1 एंड सानू स्कोर विल बी -1, 21 -1। ठीक है, और सिमिलरली फॉर लीडरशिप, तो लीडरशिप में बीनू का स्कोर है 5 और सानू का स्कोर है 6, यहाँ पे भी सेम स्टोरी हो जाए, +1 एंड -1। Okay, so in that case, this will be
न्यू स्कोर ऑफ बीनू विल बी इक्वल टू 19। ठीक है, दिस इज विद इफ कंडीशन, अगर ऐसा होता है तो अभी इफ कंडीशन के साथ ले रहा, तो यहाँ पे फिर फिक्र नहीं करना है कि नो एम्प्लॉई हैज रिसीव्ड अ स्कोर ऑफ 6 की अगर ऐसा होता तो डिफरेंस क्या आएगा, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा है नहीं, ठीक है, पर होगा तो क्या डिफरेंस होगा। 19 को कर दिया, +2 हो रहा है, तो 23 विल बी स्कोर ऑफ बीनू and 19 will be score of Sanu. So there will be a difference of 4 points. In this new scenario, there will be a score of difference of 4 points. Next question. The company uses a weight score system for promotions where teamwork and leadership carry a weight of 2 each, while every other metric carries a weight of 1. So what is the difference between the highest and the lowest weight score among all employees? So there is a weightage of 2 for teamwork and leadership, and for every other, there is a weightage of 1. Teamwork weightage is 2 multiplied by 2, and for leadership weightage is 2 multiplied by 2, and for every other metric it has to be multiplied by 1. Okay, so effectively the scores in this condition, the weight scores will be equal to the score in technical, that is 1 times, so t, if t is the score in technical, then communication ka score is also multiplied by 1 times, so plus c, plus teamwork के लिए there will be 2t, so 2 times teamwork का score tw मान लेते हैं, plus problem solving, तो p 1 into p, plus leadership का score is multiplied by 2, so 2l plus r, this with the weight score. ठीक है, ऑलरेडी हमने क्योंकि स्कोरिंग में एक एक बार तो सबको ऐड ही किया हुआ है, तो वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज इक्वल टू, ऑलरेडी जो स्कोर हमने किया टी प्लस सी प्लस टीम वर्क का स्कोर प्लस पी प्लस एल प्लस आर, तो दिस इज ऑलरेडी देयर, प्लस एडिशनली वी हैव टी डब्ल्यू प्लस एल। ठीक है, सो अपना जो ऑलरेडी स्कोर है उसमें टीम वर्क और लीडरशिप का स्कोर एक एक बार और ऐड कर देंगे, तो हमें ओवरऑल स्कोर वेट स्कोर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ये है कि दोबारा हमें एफर्ट करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वैल्यू सिंपल है, यहाँ पे आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो कर लेते हैं कैलकुलेशन अपना कि न्यू स्कोर्स क्या आएंगे फॉर प्रमोशंस फॉर एवरी एम्प्लॉय। तो वेट स्कोर इन न्यू कंडीशन, तो बस टीम वर्क और लीडरशिप का स्कोर ऐड कर दो, 4 + 2 6। ठीक है, और ये चेंज नहीं हुआ +1 -1, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है सर। ओके, तो +6 फॉर अनु, 23 + 6 दैट विल बी इक्वल टू 29, फॉर बीनू 21 + 9 30, फॉर मीनू दिस विल बी 20 + 7 27, फॉर रानू 19 + 6 25, फॉर सानू 21 + 11 32, and for Tanu 22 + 3 25. The lowest score is 25 for two employees, Ranu and Tanu. The minimum score is 25 and maximum score is 32. The question is asking what is the difference between highest and lowest weight score among all employees. So difference is 7 points, which is equal to 32 minus 25. So 7 is the answer for this question. Now last question, the company uses a weight score, same ही कंडीशन है, और लास्ट में पूछा है टू एम्प्लॉइज विद द हाईएस्ट वेट स्कोर विल बी प्रमोटेड, सो विच टू एम्प्लॉइज विल बी प्रमोटेड। तो हाईएस्ट स्कोर किसका है, हाईएस्ट फॉर सानू एंड देन सेकंड हाईएस्ट इज फॉर बीनू, तो सानू एंड बीनू विल बी प्रमोटेड इन दिस केस, प्रमोशन विल बी गिवन टू सानू एंड बीनू। टॉप टू स्कोरर्स, ऑप्शन सी इज द आंसर, बीनू एंड सानू। ओके, तो दिस वाज अ सिंपल सेट, अच्छा सेट था, डिफरेंट काइंड ऑफ सेट। ठीक है, तो कोशिश किया कि तुम्हारे लिए कि तो थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा दें और अकॉर्डिंगली तुम सॉल्व कर पाओ। अपना फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में, तुम्हें सेशन कैसा लगा और क्या तुमने अपने पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे इजीली कंडीशन को पढ़ के, क्योंकि क्वेश्चन सेट ये डिफिकल्ट नहीं था, बस एक बार कंडीशंस के साथ में अंडरस्टैंडिंग बिठाना था, तो क्वेश्चन इजीली डेफिनेटली सॉल्व हो गया होंगे, क्योंकि बाद में क्वेश्चंस में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं था, बस सेट को अच्छे से अरेंज करना था। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं सेशन में, और अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में कि क्या तुम सारे के सारे क्वेश्चन को टाइमली सॉल्व कर पाए थे और इजीली कर पाए थे, या कहीं पर कुछ एरर हुआ था। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।